अगर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हो तो रेलेवेंट हो तुम, अगर ब्रांड्स इंडोर्स कर रहे हो तो रेलेवेंट हो तुम, फिल्मों में आ रहे हो तो रेलेवेंट हो तुम। कौन डिसाइड कर रहा है सेलिब्रिटीज की ये पैरामीटर्स फॉर बीइंग रेलेवेंट? मेरा नाम है करीना कपूर खान एंड आज हम बात कर रहे हैं अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेइंग रेलेवेंट फॉर अ वुमन। एंड हु बेटर टू टॉक अबाउट दिस देन अ वुमन who has always inspired other women. Ladies and gentlemen, sharing her Dabur Amla story of strength today is a national award-winning actor, producer, philanthropist, and the original Sheher Ki Ladki, Raveena Tandon. Hello. Hello there. And welcome to my show. My glamorous baby. Not many people know that you have actually literally seen me grow up and I have been on all your movie shoots. How sweet. But I always remember you as being one of the most warmest and kindest persons that I have met. Sweet. Yes. Thank you so much. So, Raveena, कैसे लगता है? How do you feel when all your popular songs like Sheher Ki Ladki and like Mast Mast all get remixed in today's generation? Your name comes in like such a popular song like Kar Gayi Chul. How do you feel when you hear all this? I think interesting बात ये है कि ये सब गाने बहुत लोगों के साथ बनते हैं, चाहे वो मस्त मस्त हो, वो भी recreate हुआ था with a new beat and you know a more funkier beat and everything. So it I think infuses a new life into the song. And then ultimately, I mean, when all these remixes are done and they become popular and they become super hits, I end up owning them. Yes. So what better than that, honey? What better than that? Absolutely. It's like a double dose, double dhamaka after a while. Always, you've always had that, huh? But if you go to see Raveena, अगर Hollywood में देखा जाए तो you know the lead roles for actresses range from you know like in fact like Helen Mirren, Meryl Streep, they're all playing lead parts. If you see हमारे Bollywood में, I think the roles kind of diminish and not many people are writing roles I think for people I think above the age of 40, 45. This was the trend. I think there's this whole culture thing of के you know एक बार heroine की शादी हो जाती है, she becomes like a bhabhi figure. Yeah. So she ceases to be the male fantasy. But now I feel that trend has changed. Even our audiences accept that this is just another job. This is work for us, you know, and I think that is a good thing which has come about. So whether it's your sister, whether it's Lolo, whether it's Kajol, whether it's me, whether it's Manisha or Tabu, whoever from our age group, they're still doing such phenomenal work. Right. So I think in fact now is a great time. You know, especially you guys, 5 years down the line, you'll see an even better time, trust me. I hope so. I know so. So Raveena, media अब सिर्फ print और television नहीं है. Now it's like Twitter, Instagram, Facebook. So how are you keeping up with all this? Honestly, मैं बहुत ही ठेठ नहीं हूँ ट्विटर पे और एक्चुअली सोशल मीडिया पे, नॉट ओनली ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम. तो जो मेरी स्टाइलिस्ट हैं, बेचारी बच्चियां हैं, वो मुझे फोर्स करती रहती हैं, प्लीज़ पोस्ट कीजिए, प्लीज़ कुछ तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कीजिए. तो उनके ज़रिए मैंने शुरू की अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी. एंड अभी भी आई थिंक मैं थोड़ा वो स्कूल ऑफ थॉट से हूँ कि जो हमारी प्राइवेट लाइव्स होती हैं वो थोड़ी प्राइवेट होनी चाहिए. नहीं तो आजकल तो सब कुछ ही मतलब यू आर लिटरली लिविंग इन अ ग्लास बोल, यू नो. आई फील एक तरीके से इट्स अ बून, इट्स अ ब्लेसिंग एंड इट इज़ नॉट यू नो आई थिंक इट्स इंट्रूसिव एज वेल. इंस्टेंट आपका एक यू नो वन ऑन वन एक आपके फैन बेस के साथ यू आर इन टच एंड यू कैन इंस्टेंटली पुट आउट स्टफ. पहले जमाने में नहीं होता था. हमारे 90s में एग्जैक्टली 90s में इतना नहीं होता था क्योंकि 90s में एक बार एक कहानी हो गई, एक बार हेडलाइन आ गया तो हम उसी से लगातार जुड़े रहते थे. एंड हमें कहीं स्पेशली एक्टर्स को एंड सेलिब्रिटीज को कुछ मौका नहीं मिलता था कि हम अपनी पब्लिक को कैसे बताएं कि नहीं ये कहानी सच है या झूठ है या ये गलत इंफॉर्मेशन है. तो आई थिंक ये माध्यम चाहे सोशल मीडिया है, इट्स अ बून लाइक आई सेड, बट इट इज़ अ लिटिल इंट्रूसिव ऑल्सो क्योंकि हर बार यू नो फैंस और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मैंने तो बच्चों को देखा है मतलब जो खा रहे हैं उसका फोटो लेके इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, जहाँ बैठे हैं उसका फोटो लेके डाल रहे हैं इंस्टाग्राम में, कॉन्स्टेंटली अपने फोन में यू नो एडिक्टेड है लिटरली. सो दैट आई एम नॉट सो एडिक्टेड टू, बट आई एंजॉय इट एज वेल. तो आई थिंक ये अच्छा है एंड आई थिंक टू अ सर्टेन एक्सटेंट इतना जो कंटेंट अभी है, चाहे वो इंटरनेट पे है या वो सोशल मीडिया के मतलब यू नो जैसे इंस्टाग्राम के ज़रिए या ट्विटर के ज़रिए, तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो कीपिंग अ लॉट ऑफ पीपल रेलिवेंट. या
So Ravina, you were the first actor to adopt 2 daughters. जी. And now your girls have actually become mothers और आप एक grand mom बन चुकी है. हाँ जी. And I'm sure you also know that जो grandmother के पीछे जो tag होता है, it's known for a certain age. Yeah. And so how are you dealing with that right now? It's like a dreaded thing. Well, I've been known to break all taboos and I'm doing it again. Of course. So yes, I'm not your stereotype, grandmom, so to speak. मैं 21 साल की थी जब मैंने ये 2 लड़कियां जो मेरी कज़न्स की बेटियां थी जी. उनको एक्चुअली लीगल गार्डियन के हिसाब से मैंने उनकी देखभाल की है. एंड क्योंकि उस ज़माने में सिंगल मदर आप नहीं बन सकते थे लीगली, तो माई पेरेंट्स एंड मी टुक देम ओवर लीगली एज बीइंग गार्डियंस. आप जब किसी जो एक आत्मा ऑलरेडी इस धरती पे आ चुकी है उनको अपनाओ और उनकी ज़िंदगी बनाओ, एंड जब आप उनकी सक्सेस स्टोरी देखते हो, जब आप देखते हो कि उन खुद अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, अपनी खुद अपार्टमेंट ले ली, अपनी गाड़ियाँ ले ली हैं, अब उनके बच्चे हो रहे हैं. राइट. एक जो सेंस ऑफ थैंकफुलनेस और एक जो अनकंडीशनल लव जो मिलता है, आई थिंक उससे बड़ा जॉय, उससे बड़ी खुशी आई थिंक कभी कोई पा नहीं सकता. So Ravina, why do you think there's such huge pressure, especially on women, to constantly stay young? There's this whole thing कि you have to be young, you have to look young. प्रेशर तो आई थिंक हर समय होता था, एंड आई थिंक मैं एक और चीज़ लाना चाहती हूँ जो काफ़ी हिपोक्रिटिकल होती है. तो खाली औरतों को हमारी मीडिया चिढ़ाती है, अरे ये उसने सर्जरी किया होगा, अरे ये उसने बोटॉक्स यूज़ किया होगा, अरे ये. तो इन लोगों को क्या लगता है हीरोज़ नहीं यूज़ करते हैं? Of course. हमारे हीरोज भी सेम चीज करते हैं, तो क्यों लड़कियों की तरफ ही उंगलियां उठती हैं? Have our heroes discovered the eternal fountain of youth? Are they drinking something out of somewhere which we heroines don't know? So what is it? Yeah. So in fact मैंने तो मजाक बनाया था कि जब अंदाज अपना अपना 2 बनेगी तो आमिर और सलमान के साथ 18 साल की लड़कियां 21 year old, चलो let's increase the age a little, let's be dignified. Okay. 2 न्यू लड़कियां होंगी एंड फर्स्ट शॉट कैसे ओपन होगा? मेरी और लोलो की तस्वीरें टंगी हुई है, अगरबत्ती जली हुई है और दोनों अमर प्रेम रो रहे हैं और हाथ चढ़ा रहे हैं. 100% this is the story. के देहांत हो गया हमारी बीवियों का, Yeah, और फिर उनकी नई लव स्टोरी स्टार्ट होंगी with some 21 year olds. बट आई थिंक अब वो भी ट्रेंड बदल रहा है. which is a good thing, क्योंकि जब मैं फिल्में देखती हूँ जो अब सलमान कर रहे हैं और जो आमिर कर रहे हैं एंड अनिल कर रहे हैं एंड ऑल अदर हीरोज आर डूइंग. अगर आप दंगल देखें, आप सुल्तान देखें और आप ऐसी पिक्चरें देखें, तो यू कैन सी दैट नाउ आवर हीरोज आर आल्सो टेकिंग एवरीथिंग सीरियसली एंड द होल ट्रेंड इज चेंजिंग. So I have hope for the industry, and I have hope that it's not always going to be the way it is, and as far as staying young, I think it's all in the heart. Absolutely. And it's what you think and what you are. So it's all in the heart. There's nothing about staying young. I think there is no better lesson in life जो आपके खुद की experiences और खुद आपको जिंदगी सिखाती है. So lovely. Yeah. So as you continue to grow in this beautiful journey of yours, आपकी सबसे बड़ी fear क्या है? खाली एक फियर होता है जब रिपोर्ट कार्ड आती है घर, बस बच्चों वो फिर होता है. बट टचवुड बोथ ऑफ देम आर A-star स्टूडेंट्स, सो आई हैव नो. वही मुझे भी बताया जा रहा था, मम्मा आई हैव 2 गुड न्यूज़ एंड 1 लिटिल बैड न्यूज़. सो 1 was A-star and the second was A-star and the third one was just A. I said it's okay. Oh God. Fine, it's okay. Listen, we are all what na C and D वाले हैं हम लोग. So I was like, it's okay, it's cool. But that's fabulous. Yeah. And thank you so much for this insightful chat that we've had. It's been so nice talking to you, and I'm sure my listeners have picked up a lot from staying relevant. And thank you so much. Seeing you after so long. Thank you. Thank It was you. great. It was great to see you.